Hello, my dear students, how are you? I hope you must be in very high spirits. I am Professor H.R. Saini. I welcome you all to Saini's physics classes. Dear students, I am Professor H.R. Saini. I am here to make physics easy to understand, interesting and a scoring subject for you. And our today's topic is on chapter 2nd of plus 2, that is electrostatics and potential and capacitance. And out of this chapter we are going to discuss today what are dielectrics. You know that we can classify the substances on the basis of their various properties. ये आप बड़ी छोटी क्लास से करते आए होंगे. We can classify substances on the basis of their state, that is whether they are solids, liquids or gases. Then they can be classified on the basis of their solubility. Then they can be classified on the basis as to whether they are combustible or non-combustible, and so on and so forth. So there can be many ways of classifying different substances. Today we will classify substances on the basis of their conductivity, and on the basis of their conductivity the substances can be classified as conductors, insulators, semiconductors. So these are the three main classes of substances on the basis of their conductivity. Now what are conductors? The substances which allow the charge to pass through them very easily. ऐसे सब्सटेंस जिनमें से चार्ज बड़ी आसानी से फ्लो कर जाए, यानी कि उनमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर जाए बड़ी आसानी से, उनको हम बोलते हैं कंडक्टर्स. फॉर एग्जांपल, ऑल मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर्स. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जो कि जिनकी आयोनाइजेशन कंप्लीट हो जाती है, दे आर आल्सो वेरी गुड कंडक्टर्स. अब what is the reason for these substances to be very good conductors? In the case of metals, they are conductors because they carry a large number of free electrons in them which act as the current carriers. वो चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पे बड़ी आसानी से ले जा सकते हैं, and therefore the charge can flow through them very easily. That means they are very good conductors. और जो strong electrolytes हैं, they are good conductors because of the presence of the positively and negatively charged ions in them. Then the second category is that of insulators. The substances which do not allow the charge to flow through them are known as insulators. और अगर आपसे कोई पूछे why are they insulators, ये कंडक्टर क्यों नहीं है, ये चार्ज को क्यों नहीं निकलने देते, तो आपने कहना है because they do not have current carriers, they do not have free electrons in them. अब क्यों नहीं है वो मैं अभी आपको बताऊंगा. और सेमीकंडक्टर जो हैं और ये जो इंसुलेटर्स हैं, इनकी एग्जांपल्स हैं जैसे रबर, ग्लास, ड्राई एयर, प्लास्टिक्स एटसेट्रा. दीज आर इंसुलेटर्स. वुड भी जो है दैट इज आल्सो इंसुलेटर. देन सेमीकंडक्टर्स, द मटेरियल्स whose conductivity lies in between conductors and insulators, they are known as semiconductors. And the two typical examples of semiconductors are, remember, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन. और ये जो लास्ट चैप्टर हमारा उसमें हम पढ़ेंगे अबाउट द सेमीकंडक्टर्स. नाउ कम टू डाइलेक्ट्रिक्स. डाइलेक्ट्रिक्स आर आल्सो सेमी insulators. They are also insulators. Remember, dielectrics are also insulators, but they differ from the insulators in the respect that they contain a small number of free electrons. They of course do not allow the charge to pass through them easily, but they can transmit electrical effects.
So remember, the definition of a dielectric is that it is an insulator which does not allow the charge to pass through it, but it can transmit electrical effects through it. और अगर हम इनको किसी external electric field में रखें तो they get polarized. Now what do we mean by polarization of a dielectric? Whenever a dielectric is placed in an external electric field, the positive and negative charges in it move in the opposite directions. आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे अप्लाई करते हैं. जैसे एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसकी एक प्लेट को हमने दे दिया पॉजिटिव चार्ज, दूसरी पे आ गया नेगेटिव चार्ज. तो दोनों प्लेटों में हमने पढ़ा है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है. जब हम डाइलेक्ट्रिक को दोनों प्लेटों के बीच में रखेंगे तो जो इसके पॉजिटिव चार्जेस हैं वो नेगेटिव प्लेट की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे, और जो नेगेटिव चार्जेस हैं, जो पॉजिटिव हैं वो नेगेटिव प्लेट की तरफ, और जो नेगेटिव हैं वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ आ जाएंगे. तो जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब होगी उसमें रखी हुई इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, उस स्लैब के एक सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, दूसरे पे आ जाएगा नेगेटिव, और इसको हम इंड्यूस चार्ज भी कहते हैं, इंड्यूस सरफेस चार्ज भी कहते हैं. और उसके कारण इनके अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है जिसकी डायरेक्शन जो है दैट इज अपोजिट टू दैट ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड. लेकिन उसकी जो स्ट्रेंथ है वो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड से कम होती है. तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर दो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गए, एक जो अप्लाइड है, दूसरे जो इंड्यूस्ड है ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब. तो जो नेट बचता है वो दोनों का डिफरेंस है, और जो डिफरेंस आता है वो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड से कम आएगा, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बोलते हैं reduced electric field. So remember, whenever a dielectric slab is placed in an external electric field, the electric field inside it gets reduced. और डाइलेक्ट्रिक को हम एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं. हम कह सकते हैं कि ए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, जैसे मैंने आपको बताया, ये एक इंसुलेटर है जो कि पोलराइज हो जाता है व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट गेट्स रिड्यूस्ड. सो पहले मैंने आपको डेफिनेशन क्या बताई कि ए डाइलेक्ट्रिक इज ए मटेरियल विच डज नॉट कंडक्ट बट कैन ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स. द नेम डाइलेक्ट्रिक वाज कॉइन्ड बाय विलियम वेविल on request from Michael Faraday. So who coined the name dielectric? William Wavell. So remember, the person who gave the name dielectric was William Wavell. Now this means that a dielectric is also an insulator, लेकिन इसमें थोड़े बहुत फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं. So remember, every dielectric is an insulator, but every insulator is not a dielectric. ये बिल्कुल वैसे है जैसे आप केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, आप कहते हैं every ore is a mineral, but every mineral is not an ore. So likewise, every dielectric is an insulator, but every insulator is not a dielectric. That means dielectrics are special type of insulators, and the examples of dielectrics are dry air, mica, then distilled water, some other liquids also, some gases also, they also act as a dielectric. Now, what is the difference between a dielectric and an insulator? तो याद रखना आपने, एक जो डाइलेक्ट्रिक है जैसे मैंने आपको बताया उसमें थोड़े बहुत फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं. कारण क्या? डाइलेक्ट्रिक में और इंसुलेटर दोनों में कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं, लेकिन इंसुलेटर्स में वो कोवलेंट बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, और अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं तो वो आसानी से ब्रेक नहीं होते. इसलिए अगर ब्रेक नहीं होंगे तो इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होंगे, क्योंकि सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन हैं वो यूज़ हो जाते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स. लेकिन
जो डाइलेक्ट्रिक्स हैं उनमें भी कोवलेंट बॉन्ड ही होते हैं, लेकिन वो कंपैरेटिवली वीक होते हैं देन द कोवलेंट बॉन्ड्स इन द केस ऑफ इंसुलेटर्स। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो डाइलेक्ट्रिक है इट गेट्स पोलराइज्ड व्हेन प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो एक इंसुलेटर है उसमें पोलराइजेशन या तो बिल्कुल नहीं होती, अगर वो परफेक्ट इंसुलेटर तो उसकी बिल्कुल पोलराइजेशन नहीं होगी, या बहुत ही कम नेग्लिजिबल पोलराइजेशन होती है। देन द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर a dielectric, the value of dielectric constant for a dielectric is it has a finite value, but the value of dielectric constant of an insulator is very very low. तो ये फर्क है बिटवीन डाइलेक्ट्रिक्स एंड इंसुलेटर्स। और अगर आपको कोई कहे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए डाइलेक्ट्रिक एंड ए कंडक्टर, तो उसमें आपने कहना कि कंडक्टर में देर आर ए लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो डाइलेक्ट्रिक में बहुत कम नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देन द कंडक्टर्स अलाउ द चार्ज टू पास थ्रू देम वेरी इजीली, द इंसुलेटर्स डू नॉट अलाउ द चार्ज टू पास थ्रू देम easily. Then the value of capital K for metals, that is for conductors, is very high. In fact, the value of dielectric constant for metals is how much? Infinite. Remember, the dielectric constant of metals is infinite. लेकिन ये जो डाइलेक्ट्रिक हैं इनके लिए जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू है इट हैज़ ए फाइनाइट वैल्यू। फॉर एग्जांपल, फॉर वाटर इट इज़ अबाउट 80 और 81, फॉर माइका इट इज़ अबाउट 6, फॉर एयर और स्ट्रिक्टली स्पीकिंग वैक्यूम इट इज़ 1। देन द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ मेटल्स इज 0 and the dielectric strength of a dielectric has a finite high value। और अगर आपको कोई है कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इंसुलेटर्स की कितनी होती है तो आपने कहना इट इज़ वेरी हाई। फॉर एग्जांपल, द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ वैक्यूम इज इनफाइनाइट। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन conductors, insulators, semiconductors, and then what are dielectrics? Remember, they are special type of insulators। और फिर मैंने आपको एक बहुत important चीज़ बताई कि every dielectric is an insulator, but every insulator is not a dielectric। अब बेटा ये आपने याद रखना है कि डाइलेक्ट्रिक दो तरह के होते हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। नाउ व्हाट आर पोलर डाइलेक्ट्रिक्स? द डाइलेक्ट्रिक्स which are made up of polar molecules, they are known as polar dielectrics, or the dielectrics which are made up of non-polar molecules are known as non-polar dielectrics। Now let us understand what are polar molecules and what are non-polar molecules। तो पहले मैं आपको बताता हूँ non-polar molecules, ऐसे molecule जिनमें सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आपस में कोइंसाइड करते हैं। कोइंसाइड करने का मतलब दे आर एट द सेम प्लेस। जैसे ये मान लो एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ नेगेटिव चार्ज एक ही जगह पे होंगे और इनकी शेप होती है सिमेट्रिकल। और इनकी एग्जांपल्स हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की, जैसे H2 मॉलिक्यूल, N2 मॉलिक्यूल, O2 मॉलिक्यूल, Cl2 मॉलिक्यूल एट्सेट्रा। ये सारे जो हैं दे आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि इनमें जो सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस हैं दे आर एट द सेम प्लेस। अब बेटा याद रखो, हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि टू इक्वल एंड unlike charges separated by a small distance are said to constitute an electric dipole। और उसमें मैंने आपको एक टर्म बताई थी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो मैंने कहा था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज। जो दो चार्ज हैं जिनसे मिलके
बना इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक पॉजिटिव दूसरा उतना ही नेगेटिव, उनमें से किसी एक की मैग्नीट्यूड ले लो। मान लो एक चार्ज है प्लस क्यू, दूसरा है माइनस क्यू, तो मैग्नीट्यूड क्यू आ गई। Product of magnitude of either charge and length of the electric dipole. And what do we mean by the length of the electric dipole? It is the distance between the two charges constituting an electric dipole. तो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसकी मैग्नीट्यूड जो है इसको हम आम तौर पे पी वेक्टर, स्मॉल पी वेक्टर या पीई इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, क्योंकि मैग्नेटिज्म में जाके हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट तो उसको हम पीएम से डिनोट करते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हम पी से भी डिनोट कर लें तो उसका कोई फर्क नहीं। सो दैट इज इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाइड बाई 2a। तो ये एक वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन जो है वो 2a की तरफ होती है। सो अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल मींस डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस कॉन्स्टिट्यूटिंग द इलेक्ट्रिक डाइपोल। आप देखो जरा, इसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, दो इक्वल एंड अनलाइक चार्जेस, but the separation or the distance between them is 0 and therefore their dipole moment will be equal to q into 0, that is equal to 0. So remember, a non-polar molecule does not possess any permanent electric dipole moment. अब जो एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है, इट इज मेड अप ऑफ ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, और हर जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है उसका कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट नहीं है। तो मान लो आपके पास जैसे ये एक स्लैब है, ये मान लो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक की है एंड इट इज मेड अप ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, और हर मॉलिक्यूल का इंटरनल जो अपना उसका जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है वो 0 है, इसलिए पूरी की पूरी डाइलेक्ट्रिक स्लैब का भी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा 0। सो रिमेंबर, a non-polar dielectric does not possess any electric dipole moment, of course in the absence of any external electric field. अगर हम इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इसका कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हो जाएगा। वो कितना होगा वो भी हम करेंगे, लेकिन अभी आपने याद रखना है कि नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक का कोई भी परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट नहीं होता। तो इसलिए अगर आपको कोई पूछ ले एग्जाम में कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, तो आपका आंसर आएगा 0। तो आपने बेटा जी आंसर लिखना 0 और नंबर आपको मिलना है 1। Now we come to non-polar dielectrics. ये नॉन पोलर हो गया, पोलर डाइलेक्ट्रिक ऐसा डाइलेक्ट्रिक विच इज मेड अप ऑफ polar molecules. And what are polar molecules? A polar molecule is that in which the centers of gravity of positive and negative charges do not coincide with each other. That means they are not at the same place. और उनकी शेप जो होती है, ये देखो मैंने स्फेरिकल शेप, सिमेट्रिकल शेप बनाई है, लेकिन जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं उनकी शेप जरा एसिमेट्रिकल होती है ऐसे करके। तो मान लो एक जगह यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे है नेगेटिव चार्ज। अब देखो ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, और इनमें थोड़ा सा डिस्टेंस आ गया, सेपरेशन आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बन गया, और हर इलेक्ट्रिक डाइपोल का कुछ ना कुछ होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और उसकी मैग्नीट्यूड होती है द product of the magnitude of either charge and the length of the electric dipole, and length of the electric dipole means the distance between the two charges constituting an electric dipole. तो ऐसे मॉलिक्यूल की एग्जांपल्स होती हैं जैसे HCl, ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि ये एक पोलर मॉलिक्यूल है, इस पे थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव। इसी तरह NH3 molecule, then water molecule, all these are polar molecules, and therefore इसमें क्योंकि सेंटर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आपस में कोइंसाइड नहीं करते, इसलिए इनका कुछ ना कुछ परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, इवन इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फील्ड। और
जैसे मैंने आपको नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में बताया कि वो बना होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल से, तो जो पोलर डाइलेक्ट्रिक होगा दैट इज मेड अप ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स, और हर पोलर मॉलिक्यूल का कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है। इसलिए अगर आपके पास ये एक पोलर डाइलेक्ट्रिक है, इट इज़ मेड अप ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स, हर पोलर मॉलिक्यूल का कुछ ना कुछ परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, तो इवन इन द एब्सेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इसका कुछ ना कुछ परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हो भी सकता है, लेकिन नहीं भी हो सकता। अब आप कहेंगे नहीं, क्यों नहीं होता, और जनरली नहीं होता वैसे, लेकिन क्यों नहीं होता? क्योंकि इन द एब्सेंस ऑफ द एक्सटर्नल फील्ड द dipole moments of the individual molecules are oriented in random directions। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर है, और बहुत से वेक्टर ऐसे हैं, बहुत से मॉलिक्यूल हैं इसमें पोलर ऐसे, जिन किसी का डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन जो है वो ऐसे होगी, किसी के डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऐसे होगी, किसी का ऐसे होगा, किसी का ऐसे होगा। तो जब इन सब का हम रिजल्टेंट निकालेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 0। सो याद रखो, अगर कोई पोलर डाइलेक्ट्रिक भी है तो इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड उसका डाइपोल मोमेंट भी 0 ही होगा, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट that each of its constituent molecule has a permanent electric dipole moment। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कंडक्टर्स में बहुत से फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट दे मूव इन रैंडम डायरेक्शंस इन द एब्सेंस ऑफ एनी अप्लाइड एक्सटर्नल फील्ड, इसलिए उनकी जो एवरेज वेलोसिटी बन जाती है, हालांकि वेलोसिटी बहुत होती है उनकी, आपको अगर याद हो तो एवरेज स्पीड उनकी होती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की इन ए कंडक्टर ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 raised to the 5 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर एवरेज वेलोसिटी आपको पूछ ले कि कितनी होती है किसी कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपने कहना 0। क्यों? कि सभी जो फ्री इलेक्ट्रॉन हैं उनकी वेलोसिटी जो हैं दे आर रैंडमली ओरिएंटेड। इसी तरह यहाँ भी जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट्स हैं ऑफ द वेरियस मॉलिक्यूल्स कॉन्स्टिट्यूटिंग ए पोलर डाइलेक्ट्रिक आर रैंडमली ओरिएंटेड, and therefore the net electric dipole moment of the polar dielectric is 0। so that's all for today। कल हम पढ़ेंगे बेटा जी कि जब हम किसी पोलर डाइलेक्ट्रिक को और फिर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो क्या होता है। सो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्लेसिंग ए पोलर और ए नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक in an external electric field। तो ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड माई लेक्चर। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।